अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ईरानी सदर के दौरे लाहौर और कराची की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान के दौरान आज लाहौर के दौरे के बाद वो कराची पहुंच गए हैं। ईरानी सदर ने लाहौर में शार मशरिक़ अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी। इस मौके पर लाहौर में हाई अलर्ट रहा। तमाम सड़कों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई थी, बल्कि लाहौर और कराची में आज आम तातील भी दी गई है। ईरानी सदर ने लाहौर में पंजाब हुकूमत के अहम अफराद से मुलाकात भी की। बिल्कुल। और गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजूम आने वाले 5 सालों में $10 अरब करने समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं। दोनों ममालिक ने सिक्योरिटी, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, वेटरनरी हेल्थ, सकाफत और अदालती उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया है। दूसरी जानिब अमरीका ने खबरदार किया है कि ईरान से तिजारती ताल्लुकात कायम करने वालों को ईरान पर अमरीकी पाबंदियों को मद्देनजर रखना चाहिए। और ये एक अहम पॉइंट है, क्योंकि उनका कहना है कि पहले से उन्हें ये पता होना चाहिए कि ईरान पर अमरीका की जानिब से पाबंदियां आयद हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की बात करें तो ये खुश आइंद एक अमल है कि दोनों ममालिक के सरबराहान मिले हैं और बहुत से माहे हैं। लाहौर में जब मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने, तो इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू भी की। उनका क्या कहना था आपको वो दिखाते हैं। ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس میکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی یہاں پر بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، قطعاً بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جذبات پائے جاتے ہیں، ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ وابستگی پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے جذبات۔ دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع و مردم میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں اور ایک جذباتی عوام ہیں اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے اور ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی ہے۔ تو ایرانی صدر کی جانب سے وہاں پر گفتگو کی گئی اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آ کر اجنبیت محسوس نہیں ہوئی ہے۔ وہ لاہور پہنچے اور لاہور میں ان کا استقبال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیا، اور ابھی کی خبر یہ ہے کہ وہ کراچی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں اور ایرانی صدر کا کیا شیڈیول رہے گا، بات کر لیتے ہیں ارباب علی چارنیوں سے۔ ارباب، بتائیے گا کہ ایرانی صدر کب تک کراچی پہنچیں گے، کن کن سے ملاقاتیں ہوں گی؟ جی ہاں، ہمارے مہمان ایران کے صدر جو کہ اس وقت پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، وہ آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا دورہ کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ مہمان کا استقبال کرنے کے لیے آج جیسے ہی وہ ہمارے ایران کے صدر ایئرپورٹ کراچی پہنچیں گے تو وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ ان کا استقبال کریں گے۔ اس کے بعد مہمان کو ایک بڑے قافلے کی صورت میں یہاں پر کراچی کے مقامی ہوٹل میں لایا جائے گا۔ وہاں سے مہمان پورے پروٹوکول میں مزار قائد پر آئیں گے، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی مزار پر وہ حاضری دیں گے۔ اور ہمارے مہمان صدر ایران وہاں پر جو ایک بک ہے جس میں مہمان اپنے تاثرات لکھتے ہیں، اس میں وہ اپنے تاثرات بھی لکھیں گے۔ جس کے بعد مہمان کو لایا جائے گا تمام شارع فیصل اور ایم اے جناح روڈ اور جو ہے مزار قائد اور سی ایم ہاؤس کی طرف آنے والی سڑکوں کے دونوں اطراف جو ہے وہ ناکہ بندی کر دی گئی ہے، تاکہ مہمان آرام سے آئے اور جائے، اور جہاں بھی مہمان کو جانا ہو وہاں انہیں مکمل سیکیورٹی کے ساتھ آرام کے ساتھ پہنچایا جائے۔ تو آج کراچی میں ان کا اس طرح والیانہ استقبال کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، ارباب علی چانڈیو کراچی سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اب سے کچھ دیر میں پہنچیں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کراچی، جہاں پر بھرپور انتظامات بھی کیے گئے ہیں، اور گورنر ہاؤس کراچی میں ان کے لیے عشائیے کا اہتمام بھی کیا جائے گا، جس میں
بلاول بھٹو زرداری خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ایرانی صدر کا یہ دورہ پاکستان، خصوصاً دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے جو معاہدے کیے گئے ہیں، جن معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کی گئی ہے، انتہائی یہ اہمیت کا حامل یہ دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خصوصاً اگر ہم بات کریں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر، جہاں ایک جانب فلسطین میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے، ایران اور اسرائیل کا تنازع بھی سامنے آیا، اس کے بعد ایرانی صدر کا دورہ پاکستان یقیناً جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال میں انتہائی اہم ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کی جانب سے جو ایک پرنسپل سٹانس ہے اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے، اس کو بھی سراہا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ مورلی سپورٹ کرنے پر ایران کے ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جب ایرانی صدر اسلام آباد پہنچے تو وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور جس میں دونوں کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ امریکہ کی جانب سے بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں ان سب کو ممکنہ خطرے کے حوالے سے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ ایران اسرائیل تنازعہ بھی اپنی جگہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت کشیدگی کا عالم ہے، لیکن اگر ہم پاکستان اور ایران کی بات کریں تو فلسطین کے معاملے پر دونوں ملک ایک پیج پر ہیں، اور دونوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اقوام عالم کو چاہیے کہ فلسطینی عوام کے لیے کچھ کریں، اور غزہ میں جو بربریت کا سلسلہ جاری ہے اسے ختم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 3 روزہ دورے کے بعد جتنے بھی ایگریمنٹس دونوں ملکوں کے درمیان ہوئے ہیں، کیا وہ عملی طور پر انہیں شروع کیا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ معاہدے تو ہو جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا، لیکن ہوپ فار دا بیسٹ، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہوں، کیونکہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہوں گے تو دونوں کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہوگی۔ اچھا، اس موقع پر جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس کو بھی مکمل کرنے کے حوالے سے جو وہ بات چیت کی گئی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ منصوبہ چل رہا ہے اور اس پر کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر جب امریکہ کی جانب سے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ اگر تجارت بڑھائی جاتی ہے ایران کے ساتھ تو پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے دونوں ممالک کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن آگے بڑھتے ہیں دن بھر میں، اور اب بات کر لیتے ہیں کچھ موسم کی، کہ بارشیں برسانے والے ایک اور سسٹم کی کل شام تک بلوچستان میں داخل ہونے کی پیشگوئی ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات نے موسمیاتی تبدیلیوں سے سیلاب کی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ پی ٹی ایم اے کی جانب سے جاری الرٹ کے مطابق بارشوں سے زیارت، شیرانی، موسیٰ خیل، نوشکی، پشین، ہرنئی، یوب، بارکھان، کوہلو اور سبی سمیت دیگر اضلاع متاثر ہوں گے، جبکہ لاہور میں آج صبح متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ پنجاب میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 29 اپریل تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے، اور یہ بارشیں پکی گندم کی فصل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ جو کسان ہیں وہ بھی پریشان ہیں، زمینداروں کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ اگر بارش سے فصل کا نقصان ہو گیا تو کس طرح سے پورا کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہ سکتا ہے۔ مغربی ہوائیں پاکستان میں داخل ہو چکی ہیں۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، کوئٹہ سے فضل طواب ہمارے ساتھ موجود۔ فضل بتائے گا، ایک بار پھر سے بلوچستان میں موسلادھار بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، کیا اس حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں، خصوصاً پی ڈی ایم اے کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں 24 اپریل سے ایک اور طاقتور سسٹم بارشوں کا داخل ہونے کا پیشنگوئی کی گئی ہے، اور اس حوالے سے محکمہ پی ڈی ایم اے نے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، نوشکی، چاغی، مستونگ، قلات سمیت دیگر اضلاع میں 24 اپریل سے 27 اپریل کے درمیان مزید بارشوں کا امکان ہے، جس کی وجہ سے پہاڑی علاقے اور ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے جان زیب خان۔ گورنمنٹ اپنے اسٹانڈ سے پیچھے نہیں ہٹے گی، ہم لوگوں کے لیے ہر دم کھڑے رہیں گے۔ خدارا آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، ان دنوں میں ہم پھر کہتے ہیں غیر ضروری سفر، پکنکس، یا آج کل جو نیا ٹک ٹاک کا دور چلا ہوا ہے کہ جی یہاں سے ریلا گزر رہا ہے، میں کھڑا ٹک ٹاک بنا رہا ہوں، پانی کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کو لے جائے ساتھ۔ 24/7 ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جی کم سے کم نقصان ہو۔
लेकिन ये नुकसान कम से कम तब होगा जब आवाम भी अपनी ज़िम्मेदारी। जी बिल्कुल, जैसा कि डीजी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि किसी भी नागानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए PDMA समेत तमाम हुकूमती मशीनरी जो है वो अलर्ट पर है। और इस वक्त भी जो चूँकि मुतासरा अजला जो हालिया बारिशों में मुतासर हुए थे, वहाँ पर रिलीफ का काम जो है न सिर्फ PDMA बल्कि पाक फौज और फ्रंटियर कोर्स समेत दीगर इदारों की जानिब से जारी है। जी, तो एक तरफ बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के कई अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश को वैसे तो रहमत कहा जाता है, लेकिन ये किसानों के लिए जहमत बन जाती है, क्योंकि जनूबी पंजाब में होने वाली तूफ़ानी बारिशों की वजह से जो तैयार गंदम की फसल है वो तबाह होने लगी है। बात कर लेते हैं हसन शेख से। हसन, अब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और किसानों का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, बदलते हुए मौसमी हालात एक मरतबा फिर से गंदम की फसल पर असर अंदाज होने लगे हैं और इस वक्त गंदम की कटाई का अमल जो जारी था गुज़िश्ता कई दिनों से, वो एक मरतबा फिर से उसमें तातुल का शिकार हो गया है। और गुज़िश्ता रोज़ जो तूफ़ानी बारिश हुई मुल्तान शहर और जनूबी पंजाब के इलाकों में, तो बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो कि गंदम की कटाई कर रहे थे, उन्होंने जो है अपनी मशीनरी को वहीं पर रोक दिया और जो लेबर है वो अपने अपने घरों को जो है रवाना हो चुकी है। इस वक्त जो है कुछ काश्तकार हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हम बात कर लेते हैं। अब बारिशें आने लगे हैं, बारिश की वजह से हमने कल से कटाई बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी मशीनरी भी और हमारी लेबर भी घर चली गई है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश के बायस अब गंदम की जो कटाई का अमल है वो तातुल का शिकार हो चुका है। जी, यकीनन गंदम की कटाई का वक्त है और ऐसे वक्त में बारिश जो किसान हैं उनके लिए परेशान कुन साबित होती है। मुल्तान से तो हमें हसन शेख ने सूरत हाल बता दी। रेनाला खुर्द की बात कर लेते हैं। सज्जाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा, गंदम की फसल तैयार है लेकिन बारिशों का मौसम भी शुरू हो चुका है और बारिशें भी हो रही हैं, क्या कहना है किसानों का, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिनाला खुद में। रिनाला शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता कई दिनों से कभी हल्की और कभी तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़श्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। अगर बात करते चलें गंदम के हवाले से, तो गंदम की फसल जो है वो पककर तैयार हो चुकी है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरह से गंदम जो है वो पककर तैयार खड़ी है, जबकि गंदम की कटाई का अमल भी जो है वो जारी है। रिनाला खुर्द शहर और गिरदोनवा में गंदम की कटाई के हवाले से किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बायस गंदम की कटाई भी शदीद तख़ीर का शिकार हुई है। इस हवाले से किसानों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द गंदम के रेट को जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाए और गंदम की ख़रीदारी के अमल को बेहतर किया जाए, ताकि किसानों का जो हालिया बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है उसका कोई अजाला हो सके। जी ठीक है, इन बारिशों की वजह से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इसी पर ही बात कर लेते हैं कि मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में। हमारे साथ मौजूद है सरदार सरफराज साहब, जो कि अब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पंजाब में भी बारिशें शुरू हो चुकी हैं, तो ये कब तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पिछला स्पेल था तो कुछ पाकिस्तान के शुमारी इलाकाजात में अभी तक कहीं कहीं चल रही है। अब थोड़ा सा उसमें कमी उसको आ रही है और एक आध दिन और है, यानी कल का दिन भी कोई ऐसी, कल परसों कोई इस तरह की बारिश पंजाब के एरियाज़ में कोई इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, कहीं कहीं स्कैटर्ड सी रेन है। अलबत्ता बलूचिस्तान में कल रात से कुछ नई वेस्टर्नली वेव दाखिल हो जाएगी, वही ईरान के रास्ते से। तो परसों से फिर इम्कान है, यानी 25 से लेकर 24 की रात से या 25 से लेकर 27 तक बलूचिस्तान के ख़ासकर वही जो साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान है उसमें मकान आ जाता है पूरा, उसमें तेज़ पहले बारिश का, और इसी तरह से जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, उसमें कोयटा से भी कल्लात और उस तरफ ज़ोब और ज़ियारत व्यारत और चमन, उन तमाम इलाकों में तेज़ स्पेल है बारिश का। 2 से 3 दिन तक एटलीस्ट रहेगा, यानी 25 से लेकर 27 तक। फिर ये वेव बढ़ती हुई आगे ज़ाहिर है कि दाखिल होती है, उसमें केपी में और उसमें पंजाब के बेशतर एरियाज़ में बारिश होगी। इम्कान यही है कि 26 से अनवर्ड 28 तक एटलीस्ट ये सिलसिला चलेगा बेशतर जगहों में। ख़ासकर सेंट्रल और अपर पंजाब में निस्बतन तेज़ स्पेल है
اور اسی طرح سے KP کے شمالی علاقہ جات جو ہیں وہاں پر دوبارہ سے جیسے پچھلے اسپیل کے نتیجے میں خاصا نقصان ہوا ہے وہاں پر، اور فلڈنگ کی صورتحال رہی بیشتر جگہوں پر. تو اس اسپیل کے نتیجے میں بھی جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پورا، اور اس کے ساتھ دوسرا ہزارہ ڈویژن ہے، اور کوہستان اور دیگر جو گلیات کا علاقہ ہے ان کا نران ان تمام علاقوں میں نسبتاً تیز بارش ہوگی. تو اس کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ندی نالوں میں جو لوکل ندی نالے ہوتے ہیں ان میں طغیانی بھی آ سکتی ہے. اور جہاں جہاں فصلیں ظاہر تیار ہیں، ہم بات کر رہے تھے ان سے اپنے نمائندوں سے، تو وہاں ان بارشوں سے کھڑی فصلوں کو یا جو بالکل پکی ہوئی فصلیں یا جو کٹی ہوئی فصلیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ باری بھی متوقع ہے اور آندھی واندھی بھی ظاہر چلتی ہے، تو پھر اس سے ڈیمیجز ہوتی ہے. سرفراز صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں ہیوی رین فال جو ہے وہ اس کا امکان ہے، لیکن اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو ابھی گندم کی فصل کی بات ہو رہی تھی، کیا یہاں پر بھی جو ہے وہ موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے، یا یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ آندھی جھکڑ چلنے کا امکان ہے؟ بارش کے حوالے سے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے، آندھی جھکڑ تو لازمی چلتی ہے جہاں جہاں بھی تھوڑے سے ایک طرح سے کچھ سگنیفل آتا ہے بارش کا. اس کی وجہ یہ کہ یہ سیزن اس طرح سے ہے کہ سپرنگ میں آپ سمر کی طرف انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، جب تو ٹرانزیشنری یہ مہینے ہوتے ہیں، مئی اور اپریل اور پھر آگے مئی. تو اس میں ظاہر دن بھر جو گرمی پڑتی ہے ہیٹنگ کی وجہ سے پھر وہ آندھی واندھی چلنے کا سبب بنتی ہے، کنویکشن انرجی اس کو ملتی ہے سسٹم کو. تو اس میں دیکھیے جنوبی پنجاب میں تو اتنا کوئی بہت ہیوی اسپیل نہیں ہے، جنوبی پنجاب اور سے لے کر سینٹرل پنجاب تک، لیکن سینٹرل پنجاب سے اوپر بہتر اچھی بارش ہے. اور پھر شمالی پنجاب ہے جو یعنی آپ کا سیالکوٹ، نارووال، پھر اوپر چیلم اور منڈی بہاؤدین، اور پھر ساتھ میں آپ کے اسلام آباد اور راولپنڈی، اور اس سے آنورڈ مری سائڈ، ان ایریاز میں تیز پہلے بارش کا وہی 26 سے لے کے 28 تک گیپس کے ساتھ وقفے سے ان 4 دنوں میں، بلکہ 29 تک شاید، اور کچھ ایریاز میں ہو سکتے 30 تک چلے. تو اس طرح سے یہ اسپیل خاصی اچھی بارش کا باعث بنے گا. اچھا سر، آپ نے جیسا کہا کہ بارشیں ابھی تو ہوں گی، لیکن اگر ہم گرمی کی بات کریں تو اس دفعہ گرمی کی شدت کیا ہوگی؟ کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ہیٹ ویو کے خدشات ہو سکتے ہیں. دیکھیے، مئی اور جون ہی آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو اپریل سے میدانی علاقوں میں گرمی شروع ہو جایا کرتی تھی، لیکن لکیلی اس دفعہ جو یہ ایک کے بعد ایک ویسٹرن ڈسٹربنس آ رہی ہے اور بارش کا باعث بن رہا ہے وہ سسٹم پورے ملک میں ہی تقریباً، تو کہیں بھی اس طرح کی خاطر خواہ گرمی نہیں پڑی. اور اپریل کے بقیہ دن بھی نارملی گزریں گے، لیکن مئی میں پڑ سکتی ہے گرمی. ظاہر ہے کہ نارمل سے ٹمپریچر 2 سے 3 ڈگری، جیسے جو ہمارے فور کاسٹ ماڈلز ہیں یا کلائمیٹ پروجیکشن ماڈلز ہیں وہ یہی شو کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 ڈگری، خاص کر ساؤتھ میں. اس میں ساؤتھ سے مراد یہ کہ صوبہ سندھ اور پھر بلوچستان کے جو جنوبی اور جنوبی پنجاب، یہ جو تین ایک طرح سے پاکٹس ہیں، یہاں پر تو مئی کے مہینے میں پھر ایسے لگ رہا ہے کہ پہلا ہفتہ گزر کر پھر جب آگے آپ داخل ہوں گے دوسرے ہفتے میں، تو اس میں پھر گرمی میں تیزی آ جائے گی. سرفراز صاحب، گرمی میں جو اضافہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ نارتھن ایریاز کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آنے والے دنوں میں کیسا موسم رہے گا، اور کیا کوئی ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے ان علاقوں میں جانے والے سیاحوں کے لیے؟ جی بالکل جاری کی گئی ہے. کل پریس ریلیز ایشو ہوئی تھی ہمارے اسلام آباد آفس کی طرف سے، تو اس میں یہی مینشن کیا جاتا ہے کہ جو امپیکٹس ہیں ہیوی رین فال کے اور لینڈ سلائڈنگ کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے کہیں جو ہے نا فلیش فلڈنگ ہو جاتی ہے ندی نالوں میں، تو اس سے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو ٹورسٹ کو بالخصوص یعنی یہ جو 25 سے لے کے 29 تک یہ 4-5 دن ہوں گے، اس میں اوائڈ کریں جانا. اور اگر جائیں تو پھر فور کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جائیں، اس کو کچھ اس طرح سے شیڈیول کریں کہ جب رین فال کا گیپ ہو یا اس میں وقفہ ہو، تو پھر ادروائز یہ 4-5 دن اوائڈ ہی کریں تو اچھا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں KP کے خاص کر، اور پھر پنجاب کے بھی جو مری سائڈ ہے اور اس کے ساتھ گلیات، اور پھر KP کے جو پورا چترال، دھیر اور اس طرف ہزارہ ڈویژن کا علاقہ ہے وہاں پر، اور کشمیر میں بھی جب بھی تیز بارش ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے پہاڑوں پہ سے ندی نالوں میں. تو ابھی یہ اسپیل جو ہے یہ 29 سے 30 اپریل تک چلے گا، اس کے بعد موسم میں بتدریج تبدیلی آئے گی. بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب، چیف میٹرولوجسٹ موجود تھے اور موسم کے حوالے سے بات کریں. دن بھر میں واپس آئیں گے بریک کے بعد.
तो दिन भर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 11 दहशतगर्द हलाक, जबकि ISPR के मुताबिक DI खान में खुफिया इतला पर कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तर्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें यकीनन बहुत कुर्बानियां हैं, पाक फ़ौज की भी और शहरी भी इसमें जो है वो भरपूर साथ दे रहे हैं। किस तरह से देखते हैं मामलात को जो कि KP में चल रहे हैं और बलूचिस्तान में चल रहे हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले पूरा क्रेडिट जाता है ये जो हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इनके जो पर्सनल हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी और प्लस जो अस्करी इदारे हैं, इनकी जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, इंटीग्रेटेड एफर्ट है, जिसकी वजह से आप देखें कि बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ कल परसों। और वो तमाम दहशतगर्द जिन्होंने चंद दिन पहले कस्टम पुलिस के जो एहलकार थे, अफसर थे, उनको शहीद किया, उनको इन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके पकड़ भी लिया, उनको मार भी दिया। तो ये पहली मर्तबा नहीं है, इस तरह के ऑपरेशन पहले भी ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बहुत हुए हैं, चाहे KP में हो चाहे बलूचिस्तान में हो, जिसमें कोशिश ये की जाती है कि इनको प्रीएम्प्ट किया जाए। और इसके पर्टिकुलर केस में देखें, ये बात तो एक कॉमन फैक्टर है कि लोकल फैसिलिटेटर होते हैं, सहूलतकार होते हैं, जो कि इनको इन दहशतगर्द, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हों, चाहे वो किसी और रास्ते से इंडिया से आए हों, उनको सहूलतकारी दी जाए और लोकल इंफॉर्मेशन को देके उनको जगह हो, रेजिडेंसी हो वगैरह, और फिर उनको गाइड किया जाए टारगेट के ऊपर। तो ये तो हम देख रहे हैं काफी अरसे से। अच्छा सर, लेकिन ये सिलसिला जो है आपने उठाया है, आपने अफगानिस्तान और भारत की बात की है, और ये एविडेंट है कि जितने भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में होती हैं या जो कलदम तंजीमें करती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं भारत या फिर अफगानिस्तान की सहूलतकारी या सपोर्ट हासिल होती है। इन मुल्कों को बावर करवाना कितना ज़रूरी है सिफारती सतह पर? देखें जी, पहली बात है कि हमने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, तालिबान गवर्नमेंट को कई मरतबा बावर कराया और बड़े हाईएस्ट लेवल, और उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश होगी और हम ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं एंटी पाकिस्तान जो अक्रॉस द अफगान बॉर्डर, उनको उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे या उनके लिए हालात मुश्किल कर देंगे कि वो हमारी सरजमीन इस्तेमाल ना करें पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब तो दूसरा एक और चीज़ सामने आ गई है, और वो ये है कि इंडिया खुद मान रहा है इस बात को कि उनकी एजेंसी जो है वो पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग्स कर रही हैं। अभी 4 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि वो एक इंडियन स्पाई होता था सुरजीत सिंह, जिसको जेल में एक पाकिस्तानी ने कैदी, वो भी कैदी था, उसने उस पर हमला कर दिया। वो उसकी रेंज सही नहीं हो गई, ये जो भी कई साल पहले हुआ। अब वो शख्स जो जेल से निकल के आया है अपना पाकिस्तानी, तो वो आपने देखा 5-6 दिन पहले उसके ऊपर टारगेटेड अटैक हुआ है। तो और खुद इंडियंस कहने के जी हमने घुस के अंदर आके, और ये वो लोग जो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं मादी में, हम उनको चुन चुन के मारेंगे। तो लिहाजा ये एक और फ्रंट है जो हमारे लिए खुल गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर हालत में चाहे सीपक हो, चाहे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हो, KP और बलूचिस्तान में ये जो एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसमें जारी बात है वो तमाम ममालिक हैं जो ये सीपैक और इंटरनेशनल ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को आगे नहीं करना चाहते, उसको सैबोटाज करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने लोकल प्रॉक्सीज हो गए इन अफगानिस्तान और इंडियंस के साथ मिलके वो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ये हालात खराब करो, ताकि हम इन बड़े जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। यकीनन सीपैक तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक तशवीशनाक अमर ये है बलूचिस्तान के हवाले से कि मिसिंग पर्सनस की आड़ में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और फिर इन्हीं लोगों के ज़रिए दहशतगर्दी करवाई जाती है, फिर सोशल मीडिया पर जो है वो ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। इस बारे में आप क्या देखते हैं और क्या कहेंगे, और ख़ुसूसन जो इस हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं पाक फ़ौज की जानिब से या सिविल इंतज़ामी की जानिब से, क्या वो इनफ हैं या मज़ीद अभी इसमें आगे बढ़ना होगा? नहीं, देखें ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करने हैं। अगर कहीं पे वो इन्फिल्ट्रेट कर भी जाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं तो जाहिर बात है फिर मुकाबला भी होता है और फिर उनके लोग भी मर जाते हैं, हमारे भी कुछ लोग शहीद हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये कहता हूँ कहाँ गई वो डॉक्टर महारंग बलोच? याद है आपको कितने वो बैंड बाजे के साथ इस्लामाबाद आई थी, लेकिन जब वो एक्सपोज हुए कि भाई जिन लोगों की वो कर रही है अपनी वकालत कर रहे हैं
वो तो ये BLA और ये बाकी जो एक 2-3 ग्रुप हैं वो तो उनके कलम तंजीमों के मेंबर हैं। और जब ये सारा मामला एक्सपोज हो गया मीडिया में, सोशल मीडिया में, और बलूचिस्तान के खुद जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, सारे वहाँ के जितनी मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, वो तो उन्होंने सब बता दिया गवर्नमेंट ने कि जनाब ये तो एक बड़ा एक प्लान्ड किस्म का एक फेक ऑपरेशन था। इट वाज पार्ट ऑफ दी ये दहशतगर्दी का एक ऑपरेशन था, आप उसको कहें PR स्टंट था उनकी तरफ से कि जनाब ये कहें कि जी हमारे लोगों को ये मार रहे हैं और वो मिसिंग है। वो तो अफगानिस्तान के कैंपों में बैठे हुए, इंडिया के ट्रेनिंग कैंप्स में बैठे हुए, और उनमें से कुछ लोग हैं जो शायद अक्रॉस द बॉर्डर ईरान की सरजमीन पर भी हैं, जहाँ से बैठ के वो पाकिस्तान में हमले करते हैं। तो लिहाजा देखें, अब ये ईरानियन प्रेसिडेंट आए हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू है। दोनों ममालिक में एट द हाईएस्ट लेवल जो आपस में एक डायलॉग हुआ है, जो एतमाद साजी का माहौल जो है वो पैदा किया गया है, जिसपे आप देखें अमेरिका को कितनी तशवीश है। भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है अगर पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं, अगर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आती है, आपको क्या मसला है? फिर आज बात कर रहे हैं कि जी अगर आप ज्यादा कोई अपना ये बिजनेस रिलेटेड मुआहदे करेंगे, इकोनॉमी के रिलेटेड विद ईरान। यकीनन ब्रिगेडियर साहब, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में गुफ्तगू थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कराची में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ड्राइवर ने समंदर में कूदकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। ताहिर महमूद की लाश निकालने के लिए समंदर में सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि मरने वाले के अहल खाना ने वाक़े की इतला भी दी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। माशी तंगी या घरेलू तनाज़ा। कराची में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ड्राइवर ताहिर महमूद ने समंदर में कूदकर मुबैना खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू टीमों ने लापता नौजवान की तलाश शुरू कर दी। नौजवान के अहले खाना के मुताबिक वाक़े की इत्तला रात गए मिली। ताहिर ने समंदर में जाते हुए अपनी अहलिया को वीडियो कॉल की थी। अपनी बीवी को फ़ोन करके बोला है कि मैं खुदकशी कर रहा हूँ, समंदर में जा रहा हूँ। पानी में जाके इसने वीडियो कॉल की है। उसकी बीवी ने जो बताया है ताहिर के अब्बू को कि वो गायब हो गया है, मोबाइल बंद हो गया है। ईदी बहरी खिदमात के रजाकार मोहम्मद फारूक का कहना था सुबह सवेरे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मौसम की खराबी की वजह से तलाश में मुश्किलात हैं। जो लहरें हैं और हवा का रुख बहुत तेज़ है, ये बॉडी अभी तक नीचे बैठी हुई है, ऊपर नहीं आई है। नीचे से जाएंगे और पानी के अंदर जाके जो है ना इसकी सर्चिंग करेंगे। अगर वो करीब में है तो हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह ये बॉडी। पुलिस के मुताबिक 27 साल ताहिर का ताल्लुक रहीम यार खान से था, जबकि कराची में शाह फैसल कॉलोनी में मुकीम था। ताहिर की कार भी मिल गई है। इसी बारे में मज़ीद जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ शुएब बन्नी। शुएब, अब तक इस वाक़े के हवाले से क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं और कहा यह गया है कि जो अहलिया थी इस शख्स ताहिर की, उसे मालूम था कि वो खुदकुशी करने के लिए गया है? जी देखें, ये जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है, इसकी लाश तो अभी तक नहीं मिली है समंदर में से। ताहम जिस तरह से इसकी कूदने के हवाले से इसके अहले खाना ने पुलिस को, रेस्क्यू इदारों को इतला दी थी, उसके बाद से सर्चिंग का अमल जारी है। समंदर में तलाश के लिए भी ईदी के गोताखोर और जो कश्ती है वो मौजूद है समंदर में। लेकिन आज समंदर में ज़रा पानी का फ्लो ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इस वजह से उनको गोताखोरों को भी मुश्किलात का सामना है। ये जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है, इसकी गाड़ी बिल्कुल उस जगह के करीब से मिल गई थी जो कि लॉक कंडीशन में थी। उसको पुलिस ने अपनी तहवील में लिया, फिर इनकी फैमिली वगैरह से रब्ता किया गया। ये जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये इसकी 2 शादियां थीं और ये अपनी फैमिली से ही वीडियो कॉल पे आखिरी मरतबा रब्ता करने के बाद से लापता हुआ है। इसने बताया था कि मैं पानी में कूदने के लिए जा रहा हूं, जिसके बाद से ये तलाश का मरहला जारी है। अब ये जो 27 साल जो ताहिर महमूद ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है, इसके अहले खाना से बात हो पाई है? तहकीकात के हवाले से कोई बयानात कलमबंद हुए हैं? क्या वजूहात सामने आ रही हैं इस खुदकुशी की? तलाश कर रहे हैं। ताहम अब देखना ये होगा कि आखिरी इसकी फैमिली से जो रब्ता हुआ था, उसके बाद फैमिली पुलिस को क्या वर्जन देती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा फैमिली रिलेक्टेंट दिखाई दे रही थी जब पुलिस ने उनसे मालूमात हासिल करी और मीडिया ने भी जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया को जवाब देने से गुरेज किया है। अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि फैमिली अभी रिलेक्टेंट है बात करने के हवाले से, लेकिन डेफिनेटली जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जारी होंगी और इस दौरान फैमिली के लोगों के बयानात कलमबंद होने हैं। क्या इस हवाले से कोई वजूहात अब तक सामने आ सकी हैं? क्या वजह बताई जाती है इसकी खुदकुशी की? क्योंकि फैमिली जो है, इनके भाई से आज मीडिया
की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने भी गोलमोल अंदाज में बात करी है। तो वाज़े तौर पे उन्होंने नहीं बताया कि ये सिचुएशन क्यों आई है, और जिस तरह से 2 बीवियों का मामला है तो उस पे भी मामलात की अभी इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, पुलिस इस तमाम तर मामले की तहकीक कर रही है। अभी तक मालूम नहीं कि ताहिर ने खुदकुशी क्यों की है। शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद है। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पंजाब के जिला टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में 2 जवारी ग्रुपों में जुआ खेलने के दौरान लड़ाई। दोनों ग्रुप लड़ाई में जख्मियों का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अपने अपने जख्मियों की मेडिकल लीगल रिपोर्ट लेने अस्पताल गए। तो पीर महल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी एक बार फिर मैदान जंग बन गई। दोनों ग्रुपों के अफराद ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि अस्पताल के अमले में इस मौके पर भागने में गनीमत जानी और भाग कर जान बचाई। अस्पताल इंतजामिया ने दोनों ग्रुपों पर अस्पताल नुकसान और तोड़फोड़ करने के इल्जामात की दरख्वास्त भी पुलिस को दे दी है। मियां शाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मियां शाहिद, ये क्या मामला था और पुलिस अब इस सिलसिले में कार्रवाई क्या कर रही है? जी बिल्कुल, शहर के नवाही गांव 319 काबे में बाजी के दौरान 2 ग्रुपों में अचानक झगड़ा हो जाने पर दोनों अतराफ से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। तो मेडिकल लीगल के हसूल के लिए जब जख्मी अफराद को THQ अस्पताल पीर में लाया गया तो शोबा इमरजेंसी में दोनों ग्रुपों के अफराद एक दूसरे के आमने सामने हुए तो इमरजेंसी मैदान जंग बन गई। जवारी ग्रुप के अफराद ने कुर्सियां और मेज समेत दीगर सामान तोड़ फोड़ कर अमला को संगीन रताई की धमकियां देना शुरू कर दी। हालात की संगीनी को देखते हुए इमरजेंसी शोबा इमरजेंसी में मुतय्यन डॉक्टर और दीगर स्टाफ ने भागकर अपनी जानें बचाई। जब इस सिलसिला में मुतल्लिका थाना के SHO से रब्ता किया गया तो उनको कहना था कि हमें दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, बहुत जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों ग्रुपों के खिलाफ जो है अब तक बाकायदा तौर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया? अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। SHO से हमारी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि बहुत जल्द मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके पाबंद सलसल कर दिया जाएगा। और इस मुकदमे का मुद्दई कौन होगा, क्योंकि एक दरख्वास्त तो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी दी गई है? अस्पताल में होने वाले झगड़ा तोड़ फोड़ के मुकदमा की दरख्वास्त THQ अस्पताल डॉक्टर हारून मजीद चौधरी की मुद्दत में दी गई है। ठीक है, मियां शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और इस खबर के हवाले से तमाम तर बता रहे थे कि अभी तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले को देख रहे हैं और बहुत जल्द इस हवाले से पेशरफ्त हो जाएगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।